replenishment policies, again, there are policy is something, how much to order, when to order, कितना order करना है और कब order करना है, right? So will be there are 5 key methods: EOQ policy, wherein we order Q quantity every T time period. तो ये आज हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे orders place करते हैं. Then we have single period models. The classical example is stadium में cricket match हो रहा है, तो there is only one window of opportunity before the match that we stock up our items. तो कितना हमें quantity Q order करना चाहिए so that we maximize on our profits. Base stock policy is 1-for-1 replenishment. एक खत्म हुआ, एक आपने order कर दिया. Then last time we looked at continuous review policies and periodic review policy. So आज हम देखेंगे a mix of EOQ and continuous and periodic review policies. कि इसको mix करके हम कैसे use करते हैं, क्योंकि there is no one single way कि आप उसके हिसाब से चलते हो. So we'll understand a little deeper about these policies. So before we get into the policies, let's look at what is our total logistics cost or supply chain cost. So total cost is purchase cost plus ordering cost plus inventory holding cost plus obsolescence cost. अगर कुछ shortage हो जाता है, तो that is also a cost, right? So जो हमारी equation बनती है, total cost equation, if we order Q items, total cost, इसको read ऐसे करना है, TC bracket Q को, total cost of ordering Q items. अगर हम Q items Q quantity order करते हैं, तो हमारी total cost क्या होगी? Purchase cost will be cost into demand, right? जो cost of the product है into demand of that product, plus CT is unit ordering cost, की cost per order into number of orders. Number of orders क्या होगा? Annual demand upon हर बार आप कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं. तो अगर साल का आपका 100 यूनिट्स का डिमांड है and every time you order quantity 10, then you will place 10 orders in a year, and cost of ordering is CT. So this is basically that term of ordering cost, CT into D upon Q. D upon Q is basically number of orders that you will be ending up placing in a year. Then plus CE is the inventory holding cost into Q upon 2. ये basically आपका cycle stock है जो आप जिसकी inventory hold कर रहे हैं, right? Plus your shortages. अब इसमें what we are going to focus on is total relevant cost for ordering quantity Q. So TRC is total relevant cost, which means which costs are relevant to the order quantity decisions. तो कौन से पैरामीटर्स हैं जहाँ पे कैपिटल Q है? तो बेसिकली your ordering cost and holding cost. So your TRC for ordering Q, total relevant cost for ordering Q items, is your ordering cost, which is cost per order CT into D upon Q, which is number of orders, plus CE, which is your inventory holding cost, into जब आप स्टार्टिंग में ओपन करते हैं इन्वेंट्री, तो आप Q आइटम्स ऑर्डर करते हैं, एंड बाय द टाइम यू रिप्लेनिश इट, द इन्वेंट्री इज 0, सो Q plus 0 upon 2, which is Q by 2. So average inventory into holding cost. So हमारा जो relevant cost equation है, that becomes ordering cost plus holding cost. Relevant cost मतलब क्या है कि हमें Q ही क्यों ऑर्डर करना है, what should that Q be, right? So उसके डिसीजन के लिए जहां पे भी Q आ रहा है वो हमारा relevant cost है. So दो टर्म्स में हमारा Q आता है, वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज होल्डिंग कॉस्ट. यहां से ही बेसिकली डिराइव होता है EOQ. तो थोड़ा सा टेक्निकल है, बट एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग इज कि TRC इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. उसका अगर डिफरेंशियल लिया, सो सम ऑफ यू वुड हैव डन कैलकुलस इन योर क्लास 11th-12th वुड रिमेंबर कि हम उसका जो ग्लोबल मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं.
सो आप उसको डिफरेंशियल करते हैं, यू इक्वेट इट टू जीरो, एंड इफ इट इज अ इफ दैट टर्म, उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकाल के उसको हम सॉल्व करते हैं क्यू के लिए। सो क्यू बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू सी टी डी अपॉन सी ई। अब ये ग्लोबल मिनिमम है या ग्लोबल मैक्सिमम है वो कैसे पता चलता है? आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका निकालते हैं, एंड इफ इट इज मोर देन जीरो देन इट इज अ ग्लोबल मिनिमम। तो अगर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो टू सी टी डी अपॉन क्यू टू द पावर थ्री। अब इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिमांड विल बी आइदर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो भी आप क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे वो पॉजिटिव में ही होगा। सो दिस एंटायर टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, एंड देयरफॉर वी नो कि दिस इज अ ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम मतलब क्या है कि टीआरसी क्यू जो है वो मिनिमम होगा, देन क्यू इज इक्वल टू टू सी टी डी अपॉन सी, इसका स्क्वायर रूट, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि आपका जो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है, इफ यू ऑर्डर क्यू स्टार, इफ यू ऑर्डर क्यू स्टार, तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड ये आपको टोटल जो कॉस्ट है ये हमेशा आपका मिनिमाइज होगा। सो विच मीन्स ये जो सेकेंड इक्वेशन है टीआरसी क्यू, अगर ये क्यू जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूला से हम इसको ऑर्डर करें, तो हमारा ये जो टोटल कॉस्ट है सी टी डी अपॉन क्यू प्लस सी क्यू अपॉन टू, ये पूरा कॉस्ट हमारा मिनिमाइज होगा। अगर उससे ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, उससे कम ऑर्डर करते हैं तो भी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा ग्लोबल मिनिमम, और वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू सी टी टी इंटू डी अपॉन सीई, एंड दिस quantity is called economic order quantity. This quantity q star is called economic order quantity. तो ये कहां से डिराइव हो रहा है? बेसिकली डिराइविंग फ्रॉम कि हमें टोटल रेलिवेंट कॉस्ट अपनी मिनिमाइज करनी है, हमें टोटल रेलिवेंट कॉस्ट अपनी मिनिमाइज करनी है, तो उसके लिए हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए इज बेसिकली योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट? द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म दैट वी वर टॉकिंग अबाउट इज दैट कैपिटल टी, कि टाइम बिटवीन रिप्लेनिशमेंट्स, कि आपने एक ऑर्डर किया, अब दूसरा ऑर्डर कब करोगे? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करोगे? डी अपॉन क्यू, और कितने टाइम बाद करोगे इज उसका ऑपोजिट, क्यू अपॉन डी। और उसको अगर हम सॉल्व करें तो टी स्टार बिकम्स टू सी स्क्वायर रूट ऑफ टू सी टी अपॉन सीई इंटू डी। सो टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कितना ऑर्डर करना है एंड व्हाट इज द टाइम बिटवीन द रिप्लेनिशमेंट्स, टी स्टार, राइट? सो हम ये बोल रहे हैं टोटल रेलिवेंट कॉस्ट अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हमें क्वांटिटी क्यू स्टार हमें ऑर्डर करना चाहिए, एंड दैट क्यू स्टार इज स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू सी टी इंटू डी अपॉन सीई, इतना ऑर्डर करना है। एंड व्हेन टू ऑर्डर? एवरी टी पीरियड्स, टाइम बिटवीन रिप्लेनिशमेंट इज कि कितने पीरियड के बाद हमें उसको ऑर्डर करना है, राइट? अब इसी को हमें बेसिकली ग्रुप करना है। सो बेसिकली गोइंग बैक टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, these are some of the assumptions. Demand is constant, known, continuous, lead time instant है, right? With so these are basic assumptions. इसमें हम obviously modify करेंगे. And if you look at all the assumptions, the second last assumption is number of items is one. So EOQ हम हर एक item का निकालते हैं, right? So how does it change when you change shift from number of items is equal to one to many? क्योंकि we will be dealing with 240 items, हम उसमें कैसे changes करते हैं? That is something that we will be looking. So economic order quantity क्या है? Just to reiterate, is a classic inventory management concept that helps business decide optimal order quantity of stock to minimize total inventory cost. जो हमने टीआरसी रेलिवेंट कॉस्ट दिया है उसको अगर हमें मिनिमाइज करना है तो क्या क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए इज बेसिकली योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू। इट बैलेंसेज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, मतलब जो दो टर्म्स हमने देखी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, वो दोनों इक्वल हो जाती है इफ वी ऑर्डर क्यू ईओक्यू। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट?
cost incurred every time an order is placed, right? And admin cost, transportation cost, paperwork. Inventory holding cost क्या है? Cost of storing an inventory. Capital, cost of capital, warehousing, insurance. So these are the individual components. Essentially, what we are saying is we are minimizing the total relevant cost by ordering Q star. And Q star is nothing but your economic order quantity, which is basically square root of 2 into C, cost of ordering into annual demand upon inventory holding cost. इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या होगा? इन रुपीज पर यूनिट पर ईयर, रुपीज पर यूनिट पर ईयर. तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इनटू इन्वेंट्री होल्डिंग परसेंटेज, जो अगर जो कंपनीज डिसाइड करती हैं 15%, 20%, 25% पर एनम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? अब इसको मैनेज करने के लिए अगर मल्टीपल आइटम्स हैं तो देर आर 2 or 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स. और वो प्रॉब्लम्स क्या है? ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. अगर 200 आइटम्स हैं आपके पास या 400 आइटम्स हैं, आप तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई आइटम फिनिश हो रहा है उसको रीऑर्डर करते रहेंगे. कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर रीऑर्डर करना पड़ेगा, राइट? देन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंसोलिडेशन. समहाउ यू नीड टू फिगर आउट हाउ डू वी कंसोलिडेट. कि हम हर बार तो प्लांट को नहीं बोल सकते अभी एक ऑर्डर आया, 1 घंटे में एक और आ गया, 2 घंटे बाद एक और आ गया. So they are also going to say इसको कंसोलिडेट करके भेजो. एंड देन ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ टाइम. हर बार हम वही कैलकुलेट करी जा रहे हैं. सो वी नीड टू फाइंड आउट सम वे टू कोऑर्डिनेट or consolidate our requirement and place it onto the plant. So we are going to look into 2 such strategies. So SKUs to use similar operating policies. So पहला है grouping using power of 2 policy, and second one is group using common cost characteristics, which is called breakpoints. So हम दोनों टेक्निक थोड़ा सा सीख लेते हैं कि पावर ऑफ 2 पॉलिसी क्या है और ब्रेक पॉइंट्स क्या है, हाउ डू वी कंसोलिडेट. और इसी के ऊपर आज की हमारी केस स्टडी है कि हाउ डू वी कंसोलिडेट. सो कमिंग टू पावर ऑफ 2 पॉलिसी. सो पावर ऑफ 2 पॉलिसी बहुत ही सिंपल पॉलिसी है. वो कहता है ऑर्डर इन इंटरवल्स ऑफ पावर ऑफ 2. कि यूनिट्स कैन बी डेज, वीक्स और मंथ्स. कि टू एवरी सेकेंड डे हम करें या एवरी सेकेंड वीक करें, 2 to the power 0 एवरी वीक करें, 2 to the power 1 2 वीक्स बाद करें, 2 to the power 2 4 वीक्स बाद करें, 2 to the power 3 8 वीक्स बाद करें. सो इट सेज हम 2 to the power पे हमें रीऑर्डर करना चाहिए. उसका फायदा क्या है? वाई दिस पॉलिसी 2 to the power? सो इट गारंटीज जो आपका क्यू स्टार की जगह अगर हम टी स्टार की जगह अगर कोई भी टी पे आप ऑर्डर करते हैं एंड दैट टी इज बेसिकली 2 to the power समथिंग, तो आपका जो मैक्सिमम कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बढ़ेगा, जो मैक्सिमम कॉस्ट बढ़ सकता है दैट विल बी 6%. उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा. एंड देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल दैट वी reorder on multiples of 2 to the power something. So it could be 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. तो उसमें आपका जो मैक्सिमम कॉस्ट बढ़ सकता है बिटवीन योर ऑप्टिमल टी स्टार, जो हमने क्यू स्टार से निकाला था टी स्टार. तो टी स्टार इज, for example, T star could be order every 6.5 days. Order every 6.5 days, quantity 1000 units, right? ये आपका T star हो सकता है. But what this theory says, policy of 2 policy says कि 6.5 days पे आप ऑर्डर मत कीजिए. या तो 4 days पे कीजिए 2 to the power 2, या 2 to the power 3 8 days बाद कीजिए. तो या 4 days बाद कीजिए या 8 days बाद कीजिए. इन एनी केस अगर 4 days में भी करते हैं या 8 days में करते हैं, तो जो मैक्सिमम आपका टीआरसी बढ़ेगा दैट विल बी विद इन 6%. और उसका एक लॉजिक है
कि how they are saying कि it will be within 6%. So there is some bit of math involved. और उसका जो सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो बेसिकली फंडामेंटली ये है कि टोटल रेलिवेंट कॉस्ट टी स्टार का एक रेलिवेंट कॉस्ट है कि सी टी इंटू डी अपॉन क्यू स्टार प्लस सी इंटू क्यू स्टार अपॉन टू, ये आपका टोटल रेलिवेंट कॉस्ट है इफ यू ऑर्डर एज पर टी स्टार पीरियड, राइट। अगर टी स्टार की जगह कोई और पीरियड लेते हैं तो द इक्वेशन बिकम्स this thing on the right hand side, trc t upon trc t star is equal to half of t upon t star plus t star upon t. तो ये जो इक्वेशन है, अगर हम पावर ऑफ टू की पॉलिसी पे फॉलो करते हैं तो ये जो इक्वेशन है डेट गेट्स लिमिटेड टू 6%। वो कैसे? थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर हमारे पास एक टाइम लाइन है 2 to the power k and 2 to the power k+1, राइट, और उस अगर हमने 6.5 डेज का इधर 4 डेज में ऑर्डर करें या 8 डेज में ऑर्डर करें, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, तो जो मैक्सिमम एरर होगा वो शायद 2 to the power k+½ पे होगा। दैट विल बी द मैक्सिमम एरर। नाउ यू इफ यू डिराइव दैट मैथमेटिकली, तो आपका इंस्टेड ऑफ अगर टी स्टार पे ऑर्डर करें, इंस्टेड ऑफ दैट वी ऑर्डर एट 2 to the power k, this equation suggests that this number is approximately 1.02 06. This number is approximately 1.06, which means मैक्सिमम आपको 6% का टोटल रेलिवेंट कॉस्ट ज्यादा होगा। बट इट इज वेरी वेरी सिंपल टू ऑपरेट। आप कुछ कन्वीनियंस के लिए यू लूज आउट समथिंग, एंड दैट लूजिंग आउट समथिंग इज लिमिटेड टू 6%, राइट। उसके बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस एक्सेल फॉर्मूला टू फाइंड आउट टी प्रैक्टिकल। टी स्टार एक है लेट्स से 6.5 डेज, टी प्रैक्टिकल के लिए एक फॉर्मूला सम अप किया गया है, 2 to the power ऑफ राउंड अप लीन, जो लॉग वाला लीन होता है, टी स्टार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन लीन ऑफ 2, जो लॉग वाला है। So you can plug in this formula directly to find the practical value of t. And this practical value of t will always be 2 to the power either 0 or 1 or 2 or 3 or 4. So आपको जो ऑर्डर करना है, या तो 2 to the power 0 is 1, every week आप ऑर्डर करेंगे, या every 2 weeks करेंगे, या every 4 weeks करेंगे, every 8 weeks करेंगे। So वो ग्रुपिंग आसान हो जाती है। सो आपके अगर 240 आइटम्स हैं तो प्रॉब्ली कुछ आइटम्स आप एवरी वीक ऑर्डर करेंगे, कुछ आइटम्स आप एवरी 2 वीक्स ऑर्डर करेंगे, कुछ आइटम्स आप एवरी 4 वीक्स, और कुछ आइटम्स एवरी 8 वीक्स। तो आपका जो स्प्लिट है वो या मैनेज करना आसान हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ टू पॉलिसी। सो पावर, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पावर ऑफ टू पॉलिसी ये बोलता है कि अगर आपका एक ऑड नंबर आता है टी स्टार का, कि ऑर्डर आफ्टर एवरी 6.5 डेज, 6.8 डेज या 9.1 डेज आ ही सकता है, राइट। सो हमें क्या एवरी 9.1 डेज ऑर्डर करना है, या 2 to the power 3 8 डेज के पे ऑर्डर करें, या 2 to the power 4 16 डेज पे ऑर्डर करें। सो डिसीजन इज ओनली बिटवीन 8 and 16, एंड देन यू कैन since उसके पास है, using this formula in the spreadsheet, it will give you an answer of 8, क्योंकि 9 is closer to 8 than 16, then automatically it will give you that number, right? So आपको every 8 weeks उसको ऑर्डर करना है, या every 8 days आपको उसको ऑर्डर करना है। तो यूनिट्स हम देखेंगे कैसे we play around with the units while doing the case study. So just to reiterate, power of two policy है कि हमें रीऑर्डर किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, शुड बी अ पावर ऑफ टू पीरियड, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, and so on. And it will restrict our increase in cost to maximum 6%। अगर हम 8 डेज, अगर 9 डेज में हमें ऑर्डर
रीऑर्डर करना है, और हम अगर 8 डेज में कर रहे हैं या 16 डेज में कर रहे हैं, हमारा टोटल रिलेवेंट कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम 6% ही रहेगा. So that is the essence of this. The second way of grouping is break point. So इसका बेसिक आइडिया क्या है? रिप्लेनिश हायर वैल्यू आइटम्स फास्टर. तो अगर आपका डिमांड है डी और उसका कॉस्ट है सी, सो हमें उसको हम मल्टी एक फैक्टर लेंगे डी इंटू सी, वो उसको अरेंज करेंगे और उस पे हम आ, आ, ये देखेंगे कि हमारा किस फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑर्डर करना चाहिए ऑन दैट पैरामीटर ऑफ सी इंटू डी. और उसका भी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, विच इज बेसिकली डी आई इंटू सी आई इज इक्वल टू बेसिकली 52 इज दैट 52 नंबर ऑफ वीक्स. तो ये वीक वीक का फॉर्मूला है. वी आर सेइंग कि एवरी वीक करना है, तो 52 इंटू 52 इंटू 2 इंटू सी टी divided by h into W1 W2. W1 is 1 week, W2 is 2 weeks, h is your holding cost. So it becomes easy to group that item, and we'll see practically. इसमें हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट जब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट इज वेरी वेरी इजी. सो दीज आर जस्ट द डेरिवेशंस. थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, बट वी नीड टू टेक द की एसेंस आउट ऑफ दिस मैथ. की एसेंस ऑफ दिस इज कि जो हमें ग्रुप करने हैं आइटम्स. नंबर वन, एक पॉलिसी थी पावर ऑफ टू पॉलिसी विच सेड कि रीऑर्डर ऑन पावर ऑफ टूज. दूसरा है ब्रेक पॉइंट. ब्रेक पॉइंट क्या है? कि किस पॉइंट पे किस पॉइंट पे आपका आप अगर वीक 1 में ऑर्डर करें वर्सेस वीक 2 में ऑर्डर करें, किस पॉइंट पे जाके वो आपको डिसीजन लेना है कि 1 में करना है या 2 में करना है. So you just equate the total relevant cost for week 1 is equal to total relevant cost of week 2. ये आप अगर करते हैं तो it gives you a very good equation in the form of di into ci is equal to 5408 ct upon h into w1 w2.